अस्सलामुअलैकुम जी सारिਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇੰਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਛੋਟ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਂਜੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ नहीं भी वो फलानी पार्टी वजीरे आज़म फलाना होए तो फलाना होवे, सानू तो कामां दी लोड़ है। इलाके च कोई सड़कां राह बनवाने चाहिए ने, काम कराने चाहिए ने, जेहड़े कोई साडे सांझे काम ने वो इन्ना ही करने। असीं इत्थे आए हैं तो सानू इस गल दा अज पता लगा अल्लाह दी मेहरबानी नाल भी अफजल लोधी जिहड़ा उहनूं अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, फौत नहीं होया जिउंदा है। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਗਬੰਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੋਟ ਮਡੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਵੋਟ ਅਸਾਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ। ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇ ਆ ਜੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਦਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਲਕ। ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਆਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਲੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦਵਾਉਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਗ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹਰਾਵੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ, ਜੇ ਜਿਤਾਵੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ MP MNA ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮਾੜੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ
ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਆਈ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹਦਾ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। अस्सलाम वालेकुम भाई। सारे पिंड वाले भरा ने, सारे जानते ने। मसला है कोई ना नहीं वोट, कोई ना नहीं वोट सियासत फायदे का नाम। असी मतलब सारे पिंड वाले सरदार साहब ने, लोधी साहब ने, असी हाँ एक सारे पिंड का सारे का मुकाम है। ये कोई है नहीं बई असी जी मतलब शेर नूं वोट देने ने, असी बल्ले नूं देने ने। असी वोट देने ने अपने पिंड नूं। पिंड साढ़े च फायदा है भी असी बल्ले नूं वोट देईए। वो इस वास्ते भी आने वाले 2.5 साल गौरमेंट कोलों फायदा लेना है। अगर जे तुसीं शेर नूं फर्ज किता दिंदे हो तो क्या हुकूमत टुट जानी है? नहीं। महंगाई घट जानी है? नहीं। वो क्यों नहीं तुसीं इस पासे मसला आंदे भी असी सारे पिंड दा जिवें गैस का मामला है, साढ़े पिंड दा पानी दा निकास है। मली साहब का एक मतलब है भी नहीं फर्दन साढ़े पिंड च उन्हां दा पिछली दफा कोई कैंडीडेट भी नहीं सी। हाँ जी। है कि माशाअल्लाह बहुत ज्यादा मतलब बंदे तुरे ने इस वास्ते। हाँ जी। ते सारे बंदे ना बनाओ, पिंड दा फायदा वेखो। ऐ ना वेखो फलाना उधर है ते मैं ते उधर ही जाना है, हाँ जी। मैं उधर ही जाना है। नहीं, सानू ना शेर ने देना, ना करेन ने देना, ना बल्ले ने देना, सिर्फ अपने पिंड दे वास्ते वोट दो। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ 5 ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਮਐਨਏ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ 2.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਐਮਐਨਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਦਾਰ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਾ ਲਵਾਈਏ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਧਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਕੜ ਖਾਵਾਂ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ बाद कोई लिखे है भी गवर्नमेंट नून लीग दी आएगी, कोई पता नहीं भी वोट दे किधर नूं की होना है। ते बेहतर है सियासी लिहाज नाल सियासी बंदा वो हुंदा है जेड़ा फायदा हासिल करे, अपने वोट दा सही इस्तेमाल करे। ते वोट सारे बल्ले नूं दवो। सरदार साहब ने, लोधी साहब ने, असीं सारे भैन भरा सारे असीं एक हां। ऐ सारे पिंड दे एक दूजे नूं पता हुंदा है, उस कोई भी नहीं पाक, कोई बंदा एक ते मुतफिक नहीं हो सकता। अपनी अपनी सारे अगर किसी को कोई मेरी गल बुरी लगी होए तो मैं मादरत चाहना, लेकिन अपनी जमीर की आवाज ना वोट दो। ए हट धरी ना वोट ना दो भी मैं फलाने नूं हराना है, फलाने नूं हराना है। वोट दवो पिंड वास्ते जिथे तुसीं रहना है, अपने फायदे वास्ते। 4 सवेरे पिंड वेख लो कि असीं की कर सके गवर्नमेंट च रह के, नून लीग च रह के की कर सकते हैं। एमएनए भी इत्थे रहा, पिछली दफा एमपीए भी है, एमएनए भी हुण भी एमएनए 40 साल रहे ने, 35-40 साल हो गए ने शहरां नूं एमएनए एमपीए हुंदे आ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਂਝ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੋਲ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਕੋਲ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਸਰਾਜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ 1-2 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2-4 ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਭਰਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲੋਧੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੈਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 2-4 ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਲੀ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੁੱਥੇ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਕੋ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੀ?
ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजरत मेरे भाइयों, मैं ज़रा लेट हो गया। पहली बात कि खुशामदीद, हमारे परवेज़ भाई हमारे पास हैं और जिस काम के लिए आए हैं आप सब लोगों को पता है कि हम इस वक्त इलेक्शन में मसरूफ़ हैं और वोटों के लिए सब लोग भागे फिर रहे हैं। हमारा जो मकसद है पिंड का वो आप सब लोगों को पता है। मैं मुख्तलिफ वक्त आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हमारा जो ये इलेक्शन का इस वक्त जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम किसी पार्टियों के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा जो ये फैसला हुआ था, जो आज हमारे साथी हमारे बीच में नहीं है, उनका नाम है अफजल लोधी साहब, उन्होंने ये फैसला किया था कि हमने पीटीआई को वोट देने हैं। तो उस फैसले के ऊपर हम लोगों ने, सब लोगों ने, जितने भी उनके साथी थे, हम आज पीटीआई के साथ उनको वोट देने के लिए उस मिशन में हैं। क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारा ये मकसद नहीं है सियासत करना। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम चाहते थे कि हमारे जो पिंड के मसले मसाइल हैं वो हल हों, और वो मसले मसाइल सिर्फ उस वक्त हल हो सकते हैं जिस वक्त हम हुकूमत का साथ दें। आप लोगों को पता है कि पिछले 8 साल से हमारा पिंड जो है वो बड़े बड़े मसलों से महरूम है। उन मसलों में 4-5 मसले हैं। सबसे बड़ा जो मसला है इस पिंड में, लोग कहते हैं कि गैस है, मैं कहता हूँ कि गैस इस पिंड का सबसे बड़ा मसला नहीं है। इस पिंड का सबसे बड़ा मसला जो है निकासी का है। तो हमारी जो पिंड की गलियां हैं, जो पिंड है हमारा, इतना को बुरा हाल है, आप यकीन माने कि लोगों का जीना दोबर हो गया है। दूसरा मसला हमारे गैस जो है वो हुकूमत का ना साथ देने की वजह से हम पिछले 8 साल से इस चीज़ से महरूम है। आज के दौर में गैस होना ना होना किसी पिंड में भी, वो सिर्फ हमारी अपनी सियासी पार्टियों की साथ देना, अपनी मुखालफतें करना और इन चीज़ की भेंट चढ़ते हुए इन लोगों को, आवाम को नुकसान हो रहा है। दूसरा बड़ा मसला है हमारे 2 ऐसे सड़कें, अभी मैं गुजर के आ रहा हूँ, मुझे आधा घंटा लगा इस पिंड के अंदर आने के लिए। वो ये जो दायरे में सड़क जाती है और जो ये वड़ैचों की तरफ सड़क जाती है, इसमें ये सड़क ना होने के बराबर है। हम पिछले 8 साल से हुकूमत का साथ दे रहे थे, मगर हम ये बड़े बड़े काम नहीं पूरे कर सके। हमने जब इस पार्टी का साथ देने का फैसला किया तो हमने सबसे बड़े ये मसले उनके सामने रखे कि हमारा जो है, हम नहीं चाहते कि हम किसी पार्टी, हमने पिछले 20-22 साल से सारी पार्टियों का साथ दिया है, मगर हमारे मसले हल नहीं हुए। ये छोटे छोटे गलियां महल्ले बनाने या कुछ करने, ये हर दौर में होते आए हैं। जूनियर काउंसिलें भी करती हैं, सारे करते रहे हैं, काउंसलर भी करते रहे हैं, सब करते रहे हैं। जब मैं नाज़िम बना था, आप लोगों को याद है, उस वक्त इस पिंड के अंदर कोई बंदा पाँव भी नहीं रख सकता था, इतने बुरे हालात थे। तो उस वक्त हमने कुछ थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद फिर अगला दौर आया, हमने फिर सब लोगों ने कर करा के अपना चेयरमैन मुख्तर किया, उससे भी कुछ काम किए। हर दौर में कुछ काम होते रहे हैं, मगर इस वक्त जो हमारा मसला है वो बड़ा मसला है। बड़ा मसला जब करना हो तो उसमें हुकूमत की मुखालफत नहीं की जाती। अगर हम इस वक्त ये इस काम के लिए हुकूमत का नहीं साथ देंगे, 3 साल हम पहले ज़ाया कर बैठे हैं, 3 साल आगे उनकी हुकूमत के रहते हैं, आने वाले 5 सालों का भी किसी को नहीं पता कि वो किसकी हुकूमत होती है। इसका मतलब हम 8 साल इस चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे। बात यह है कि मैं अब सब लोगों के घरों में जाता हूँ, आप लोगों के पास जाता हूँ, ये मसला आप लोगों का है, और मुझे अफसोस होता है कि मैं इस मसले को उजागर करने के लिए आपके ही मसले के लिए आपके ही तल्ले कर रहा हूँ। तो ये खुदारा, ये आप लोगों का अपना ज़ाती मसला है। आप लोग इस चीज़ को समझें कि हमने जो वोट देना है इस पिंड को देना है, ना कि किसी ने मुझे देना है, ना कि किसी ने पीटीआई को देना है, ना कि किसी ने शेर को देना है या किसी को देना है। आप सब लोग अच्छे भले समझदार हैं। वोट आप लोगों ने 19 तारीख को डाल देना है। वोट इधर डालें या उधर डालें, सोच सिर्फ ये होनी चाहिए कि हमें वोट डालने से फायदा क्या होता है। आप लोग ये सिर्फ सोचें। आप लोग इस पार्टियों से बालातर होकर अपने मुफाद को सामने रखें कि आपका मुफाद किस चीज़ में है। अगर हमने गलत फैसला किया तो हम 8 साल जो है ना इस चीज़ के इंतजार में और बैठे रहेंगे। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इस हुकूमत ने आना है, इसने कल को चले जाना है, किसी और ने आना है, पता नहीं। हमें अपना मुफाद अपने कामों से होना चाहिए, हमें प्यार अपने पिंड से होना चाहिए। आज जो हम इसलिए धक्के खाते फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं, सिर्फ इसलिए फिर रहे हैं कि हमारे जो ये पिंड के मसले मसाइल हैं वो हल हो जाए, ना कि हमें कुछ भाई जो है हमारे बीच में साथ ऐसे भी हैं जो कि इस दीन को जो है ना इस सियासत के अंदर लेके आ गए हैं। इस दीन का जो है सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बात यह है कि अगर तो हमें वोट देने से अगर हम जनती हो जाते हैं तो फिर पूरा दुनिया ही जनती हो गई। फिर तो हिंदुस्तान में भी वोट पड़ते हैं,
अमेरिका में भी वोट पड़ते हैं, सारी दुनिया ही हिंदुस्तान में वो जन्नती हो गई। भाई दीन का किसी हमारे पास कोई ऐसी किताब नहीं है, ना कोई कुरान के अंदर जिक्र है, ना कोई वही नाजिल हुई है जिसके अंदर लिखा गया हो कि जनाब आपने वोट देने हैं तो आप ये जन्नती हो जाएंगे। भाई इतने वो पाक नाम है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये लोग जाके जो लेते हैं कि उनकी खातिर हमें वोट दे दो, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी सियासत में इतने पाक नामों को लेने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों के सामने इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब वो लोग आते हैं तो बराए मेहरबानी आप लोग इस चीज का उनके साथ बात किया करें कि भाई ये इस दीन को इस सियासत के अंदर मत लेके आओ, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे अहकाम नहीं है। या तो ऐसा है कि अगर हम नहीं वोट दे रहे तो खैर हम गैर मुस्लिम हो गए, ये कौन सी बात है। तो लिहाजा ये आप लोगों की सब में समझ होनी चाहिए कि दीन एक अलग चीज है और वोट एक अलग चीज है। 4 साल पहले भी हमने उस पार्टी को वोट दिए थे, हमें 4 साल में वो कोई लोग यहाँ पे नजर नहीं आए। या तो वो ये कहना कि जी हमने 4 साल में इस आप लोगों ने हमें वोट दिए थे, हमने इस पिंड की ये खिदमत की, फिर तो हमारे समझ में आता है। या उनको वोट देने के बाद ये जो मैंने आपके सामने मसले रखे हैं ये हल हो जाएंगे, फिर तो हम सब लोग ही उनको वोट दे देते हैं। ये हमारा मसला जो है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारी ये जो सुई गैस बिजली ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये सियासत के साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये हमारा बुनियादी असूल हक है। जिस बंदे के पास शनाख्ती कार्ड हो दुनिया में उसका ये बुनियादी हक होता है, क्योंकि हम हर चीज के ऊपर टैक्स देते हैं। यहाँ पे बिजली चल रही है तो हम इसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं। तो ये गैस मिलना, ये बिजली मिलना, ये सड़कें, ये चीजें, ये हमारा एक बुनियादी हक है। मगर यहाँ की सिस्टम ऐसा है कि ये हमारी सियासत के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम ये चीजों से महरूम हो जाएंगे। और ये हमारी नाइल ही है कि हम लोग अपनी पार्टियां कुटते रहते हैं बैठ के और हम अपने फायदे नहीं उठाते। आज पिंड का जो हाल है वो आपके सामने है। इस इलाके में जितने भी पिंड है, मेरे ख्याल से जिस पिंड को हम सबसे भैड़ा कहते थे उनकी फहरिस्त में हमारा पिंड भी शामिल हो गया है। बाकी ये छोटी मोटी देखें, कब्रिस्तान को बात कर लेना, इन चीजों को बात कर लेना, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। हमने देखना जो जिंदा लोग हैं उनके लिए हम क्या चीज लेके आ रहे हैं। इसलिए ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए लाजमी मलजूम है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लोग कहते हैं ये गैस कौन सी है, गैस क्यों नहीं है भाई। उन औरतों को देखो ना जो सुबह 6 बजे जाके पाथियां थपती है। अब कौन सा जमाना है पाथियां थपने का। पिंडों, छोटे छोटे पिंडों में जहाँ पे 500 वोट है, उन लोगों में गैस पहुंच गई है हमारी अपनी सियासत की वजह से और एक दूसरे की चपकलिश की वजह से। और भाई ये तुम सब लोग एक हो। और एक बात का ख्याल करो कि ये गैस आएगी तो तुम्हारे घरों में आनी है। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारी माए, बहनें, बेटियां, सब लोग जो हैं उनका क्या हाल होता है। और तुम जब गैस खरीदने के लिए जाते हो 200-250 रुपए किलो, और 15 दिन में जिसके 5 से 6 जी हैं उसका बताओगे वो कितनी महंगाई का आलम है। तो ये 300-400 के बिल में पूरा महीना तुम लोगों ने सुकून करना है। और ये बाकी जो है पानी का जो मसला है, ये जितनी भी चीजें हैं, मैं भी समझता हूँ, मैं इसको चीज को आके अब समझाऊं कि अब हम हुकूमत के बगैर नहीं चल सकते। पार्टियां अपनी जगह पे हैं सारी। मैं कहता हूं कि आप लोग सब मिलके ये काम करवा लें, उसके बाद पूरी जिंदगी पड़ी है सियासत की। अपनी पार्टियों पूरी जिंदगी पार्टियों के साथ खेलते रहना, जो मर्जी जिसको वोट देते रहना। हमारा मकसद सिर्फ इस वक्त ये है कि हम इस किनारे पे खड़े हैं कि अगर खुदा ना हमने ये फैसला गलत किया तो हमें अगले 8 से 10 साल इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा। यह फैसला आप लोगों ने करना है कि ये चीज भी आपकी है, तरले भी हम आप ही के कर रहे हैं, काम भी हम आप ही का कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि मसला भी आपका ही है और तरले भी आपके करने पड़ रहे हैं। ये दुनिया में वाहिद काम है कि किसी को समझाओ तो उसकी समझ में आ जाती है, मगर ये ना समझने वाली बात है। सिर्फ इस पिंड के अंदर सियासत, पार्टीबाजी, ये वो। मेरे जितने भाई हैं दूसरी पार्टियों में भी, मैं उनको दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा इसको अकल से काम लो। सब लोग मिलकर, हमेशा इस पिंड का रवायत रही है कि हम लोगों ने जब भी इलेक्शन लड़ा है पूरा पिंड ने साथ दिया और एक होके गुजरे। इस वक्त भी हमारे पिंड का मुफाद है। ये किसी पार्टी का, ना तो हमारा रिश्तेदार इमरान खान है, ना हमारा रिश्तेदार कोई नवाज शरीफ है, ना हमारा कोई वो मौलाना रिश्तेदार है। इसलिए इन चीजों को, रिश्तेदारियों को या बरादरियों को या अपनी दोस्ती यारियों को एक साइड पे रखते हुए हम लोगों को पिंड का सोचना चाहिए कि इस वक्त हम ये फायदा उठा लें। 19 तारीख को आपने वोट डाल देने, एक दिन की अकल का सौदा आपको कितना फायदा पहुंचा सकता है, ये आप लोगों ने सोचना है। हम हर घरों में जा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये कोई समझने की बात नहीं है, कोई साइंस नहीं है कि जो किसी को ना समझ आती हो। जो शऊर रखने वाले लोग हैं, जो समझदार हैं, वो इस चीज में वाकई समझते हैं और उन लोगों ने वेलकम किया हमें। तो मेरा आप सब लोगों से दरख्वास्त है, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो हमारा नहीं साथ दे रहे, मेरा उन भाइयों से भी दरख्वास्त है,
वो भी जाके अपने लोगों से बात करें कि इस दफ़ा हम इस पार्टी के मुफाद को बालानजर रखते हुए हम सब लोग इस पिंड का साथ देते हुए ये जो फ़ायदे हमें हुकूमत से मिलने हैं, जो कि कल को आपके गलत फैसले के बाद शायद ना मिले, तो ये इस फ़ायदा को हम हासिल कर लें। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇੰਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਇੰਜ ਜਿਹੜੇ ਰਫਾਏ ਆਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜੀ ਦੇ ਵੈਰ ਵੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਲਾ ਹੀ ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਾਕ ਦਾ ਯਾਰ ਵੋਟ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 72 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡਸਕੇ 'ਚ 2 ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੱਲੀ ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਐਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੈ ਵਡੇਰੀ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲੀਏ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਨ ਛਡਾਣੀ ਹੈ ਭੈੜਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਛਡਾਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਕੜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਦਿਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਦੀਕ ਨੇ, ਚਾਚੂ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਲਵੋ ਕਿ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੌਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕੌਣ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਟੁਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ।